The thing that really helped in Kamyab's case was that it was not a big budget film at all. Try and make your material read to senior filmmakers. मतलब 99 100 में से 99 अच्छे फिल्म मेकर्स मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे. एंड एक चीज मैंने सीखी थी कि शॉर्ट फिल्म ना एवरेज कोई काम की नहीं है. मतलब एवरेज शॉर्ट फिल्म सिर्फ परिवार वाले और दोस्त देखते हैं और बोलते हैं वाह वाह, और बाद में बोलते हैं one interview Anurag Kashyap had said one very absolutely brilliant thing, that when you cannot afford to put scale into your film, invite the scale of life inside your camera. अगर मंजूमल बॉयज टाइप की फिल्म हिंदी फिल्म के स्टूडियो के पास जाते तो शायद नहीं हो पाती, क्योंकि उन लोग समझते कि सर्वाइवल ड्रामा है ना, ठीक है यार वो देख लिया लोगों ने ट्रैक, मतलब बट फ्रेंडशिप कितना बड़ा इमोशन है मंजूमल बॉयज में. इनफैक्ट हम क्या करते थे कि हम एक जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स का एक फेक लेटर हेड लेके जाते थे, जिसमें हम लिखते थे कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो आप उनको मतलब पुलिस पकड़े तो मतलब इस तरह से. और फिर उसमें जो नंबर होता था वो मेरी वाइफ का होता था, तो वो बोलते थे, हम बोलते थे कि हमारे एचओडी है, आप उनसे बात कर. So I saw Ahmedabad ma famous back in 2018 when you were here at NFAI Pune. Oh wow, you were in that screening? Yes. What a lovely screening that was. So that is when I saw Ahmedabad ma famous. Then I saw Affair when it released online. So the question which I had in context to that was like when you talk about making your first film, as a love letter to cinema that you love, like how was that? The thing that really helped in Kamyab's case was that it was not a big budget film at all. So I think anybody who wants to make their first film should ensure that they don't write something so huge. I mean, Drishyam was absolutely the brilliant producer, but they also were like, boss, itna budget hai, isme agar aapko jo chahe banana hai, aap bana lo, because we believe in your work and all of that, But much before that, around 2014, I had first this one small incident, and it's a very funny anecdote actually, because I love public transport in Bombay. In 2014, I was sitting in a best bus in Bombay, and there was this one guy जो conductor से लड़ रहा था. So he was basically arguing about some 5 rupees money and all of that. And on a closer look, I realized that अरे ये तो वो एक्टर है जो ऐश्वर्या राय का बाप था, हमारा दिल आपके पास है मैं. बट सीइंग हिम आर्ग्यू फॉर 5 rupees इन अ बेस्ट बस ऑलमोस्ट ब्रोक माय हार्ट. लाइक कि यार अरे मैंने तो सोचा था कि these guys must be like stars यार, मतलब of course I'm not like stars, but they wouldn't have to go with this kind of a whole thing. So when he got down from the bus, it was not my stop, but I still got down और उनके पीछे गया और मैंने बोला कि सर आप तो वो एक्टर है. Immediately in my brain I just like had this brainwave and told that कि सर मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ. तो he was just about to leave and he's like हाँ क्या तुम कास्टिंग डायरेक्टर हो? तो मैंने बोला कि हाँ सर, मतलब अभी कुछ कास्टिंग चल रही है, तो कौन सी फिल्म की कास्टिंग चल रही है? So I just like yapped some names idhar udhar. Now that actor's name is Ramesh Goyal. Okay, so he basically started, entertaining me a little bit. I met him 3-4 times, but every time I would give him a call, he would say that कि तुम ना मुझे 2 बजे के बाद मैसेज करो, तो मैं तुम्हें 3 बजे तक बता सकता हूँ कि मैं आज शाम को 4-5 बजे मिल सकता हूँ या नहीं मिल सकता हूँ. तो मैंने सोचा सर नहीं मिल सकने का क्या चांस होता है, मतलब क्यों, मतलब तो ही सेड क्योंकि अगर कोई उस दिन की शूट में बुलाने वाला है तो 2 बजे तक तो वो कॉल आ ही जाता है कि इस शूट में मुझे जाना है, और अगर नहीं है तो मुझे 2 बजे तक पता चल जाता है. सो आई वाज ऑलमोस्ट थिंकिंग दैट हियर इज अ एक्टर जिनको हम ऑलमोस्ट एज अ फ्रीलांस प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन टाइप की तरह देख रहे हैं, मतलब बिकॉज दे हैव देयर फ्रीलांस जॉब्स के. अच्छा भाई मतलब जैसे वो, आई एम सॉरी टू कंपेयर लाइक दिस, आई डोंट मीन इट दिस वे, बट फॉर द सेक ऑफ दिस सेशन आई कैन से समथिंग लाइक दिहाड़ी मजदूर कैसे वो बैठे होते हैं चौराहे पे कि मतलब कि आज कोई कॉन्ट्रैक्टर आएगा और बोलेगा कि मतलब कि इतना इतना लोगों का काम है चलो, मतलब बट इमेजिन एन एक्टर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट, एंड दैट टू एन एक्टर हु इज अ mainstream cinema's memory of you while growing up, matlab so it's tragicomic in that sense. So I thought that I need to write something about it, and I wrote a short film called Secondary, and I made Devashish Makhija read. And that's one thing that every filmmaker should try, or writer director, try and make your material read to senior filmmakers. matlab 99 100 में से 99 अच्छे फिल्म मेकर्स मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे. एक आध कोई ऐसा होगा जो शायद आपको आइडिया मार ले वगैरह, मुझे नहीं पता उसका क्या किया जा सकता है, बट आई थ्रू माई ट्रस्ट इन टू दीज गाइज हु वर अराउंड. सो मैंने सोचा कि देवाशीष मखीजा इज somebody who I really like, and like he is very open to meet new people. And he read after like some 15 days or so, and he said that Hardik, this is a fantastic subject, why are you writing a short about it, you should be making a feature about it. And I was like, okay, great, yeah, that's a good idea to make a feature out of it. So first of all you have to write,
and most first films will be your also film school in writing your first screenplay. The idea being that कि यार जो आप पहली फिल्म के वक्त स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखोगे ना, वो स्क्रीन प्ले राइटिंग के टूल जिंदगी भर काम आएंगे. तो पहली फिल्म लिखते वक्त पहली फिल्म तो नहीं लिख रहे, पहली फिल्म तो लिख ही रहे हो, लेकिन साथ साथ एक पूरा बहुत बड़ा क्राफ्ट भी सीख रहे हो. मतलब you know, so that was something that got into me, and I thought okay, this is a great opportunity. So okay, a lot of people who make their first films ना, उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास एक ग्रेट कैरेक्टर है, एक ग्रेट वर्ल्ड है, लेकिन एक ग्रेट सिचुएशन भी है, बट जर्नी होनी चाहिए. इन दैट इज व्हाट आई लर्नड, दैट कि ओके आई हैव दिस कैरेक्टर. मैंने ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर एक्टर्स को बाद में मिलना शुरू किया. विजू खोटे जी से मिला, ऑफ कोर्स द लेजेंड बीरबल मनमौजी. आई डोंट नो फर्स्ट फ्रेंड्स हियर इफ यू डोंट नो बीरबल मनमौजी. बाजीगर वगैरह में ना, वो सब ऐसे 90s की फिल्मों में जो बड़े बड़े बंगले होते थे ना, उसमें जो नौकरों के रोल करते थे, वो हमेशा बीरबल और मनमौजी होते थे. और उनके कुछ ना कुछ अंदर गॉसिप चलते रहेंगे कि मालकिन आज आई नहीं है, मालकिन आज गुस्सा है, दूध पी लो वगैरह वगैरह, ऐसे टाइप के टिपिकल डायलॉग्स होते थे उनके. एंड बीरबल जी was somebody whenever I would go to meet his at his home, he's somebody who was acting since Do Badan, which is 1967 in black and white film of Manoj Kumar. Wow. You know, and I was meeting him in 2014-15. Matlab, imagine. So that guy has seen everything changing in front of him in terms of Hindi cinema. So Birbal then used to, like, whenever I used to go and meet him at his home, जब जी सिनेमा स्टार गोल्ड चलता होता था, तो उसी की फिल्म आती थी, कोई ना कोई फिल्म आती थी जिसमें वो होते थे. मतलब you know, so then I thought कि और this is great यार, मतलब let me put all these elements together. And then I realized that okay, why don't I give a journey to the character where he has done so many cliche bad roles that he has never kept a list of it, and 499 बन गई है, and somebody else comes and tells. और एक्चुअली ना यूट्यूब पे एक ऐसी बड़ी बोरिंग सी चैनल है जिसमें कुछ ऐसे कुछ कहीं का लोकल चैनल है जो ऐसे बॉम्बे में लोखंडवाला में आके ऐसे सारे एक्टरों को मिलते रहते हैं. पुनीत इस्सर से मिलेंगे, फिर किसी और वो महाभारत के जितने भी कैरेक्टर्स है, और उनसे पूछेंगे आपका ये सितारों का सफर कैसा रहा, मतलब यू नो. एंड वो बोल रहा है, अबे यार मैं सुबह दूध लेने जा रहा हूँ, क्या सितारों का सफर, मतलब यू नो. सो आई वाज राइट, लाइक लुकिंग एट ऑल दीज यूट्यूब चैनल्स, और मुझे लगा कि यार इनमें से कुछ और एलिमेंट्स निकालते हैं. So basically the idea became that कि 499 फिल्म में वो कर चुका है, somebody makes him realize, and now the journey for the 500 film, and that becomes a overall screenplay graph, मतलब you know. And that is maybe the stakes are interesting enough. Right. Number one. Number two, the empathy for the character is enough for you to see him succeed, or right, for him to, like you know, go and achieve this goal sort of, or whatever Guinness record that he in his head has. And then the main idea being that ke whatever is your professional kamyabi, it can never overtake what is your personal kamyabi in life, you know. So the idea was to make a short film actually, because short film of course gives you credibility, and short film also ensures you get some kind of confidence in making the film. And making the film is not just directing, it is about how you use music, how you edit, how you put together, how you make your actors perform, so many things, matlab, you know. So all of that plays a huge role in just getting you prepared for the big day. And एक चीज मैंने सीखी थी कि शॉर्ट फिल्म ना एवरेज कोई कोई काम की नहीं है, मतलब यू नो. एवरेज शॉर्ट फिल्म सिर्फ परिवार वाले और दोस्त देखते हैं और बोलते हैं वाह वाह, और बाद में बोलते हैं पता नहीं क्या था, मतलब यू नो. तो मैंने एक एवरेज शॉर्ट फिल्म बनाई है, तो मुझे पता है कि मतलब यू नो कि एवरेज शॉर्ट फिल्म्स डोंट टेक यू एनीवेयर. दैट्स व्हेन आई थॉट दैट कि ओके लेट मी ट्राई. एंड एक वर्नर हर्ज़ॉग का बड़ा फेमस कोट है, पता नहीं इतने सालों से मैं ऐसा समझ रहा हूँ ये वर्नर हर्ज़ॉग का है, शायद किसी और का भी हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ हर्ज़ॉग का कोट है कि व्हेन यू वांट टू फाइंड अ स्टोरी, गो बैक टू योर रूट्स, मतलब यू नो. एंड दैट्स वेयर यू विल बी एबल टू, because you as a writer, artist, as a filmmaker have graduated, but you as a individual who comes from this place is still the same. So you are able to analyze that particular situation in a much, and that's why a lot of filmmakers look inwards, matlab you know, they look like Archana Phadke's absolutely amazing documentary about love, matlab you know. So so that is one thing that I realized that कि यार मैं गुजरात से आता हूँ और बड़ौदा में मैं पला बड़ा हूँ, तो अहमदाबाद वाज अ सिटी दैट वी यूज्ड टू नेवर कंसिडर गुड एट ऑल, मतलब यू नो. वी यूज्ड टू थिंक अहमदाबाद इज लाइक बिजनेस ओरिएंटेड, वहां के बच्चे बाप सब बिजनेस करते हैं, बच्चों को कोई आर्ट क्राफ्ट कुछ नहीं सिखाता हमारा. बट देन आई थॉट दैट व्हाई डोंट आई go and look at this heritage area of Ahmedabad, and that's how the journey of Ahmedabad famous began. And we shot for 2 years, and I mean while going to do some photography and all of that, also remind me, I'll tell you 3 key learnings through this whole process, which is something that any filmmaker wants to make in the end. तो वो जब मैं फोटोग्राफी अपने कैमरा में कर रहा था, तो I found this boy and I saw this amazing passion in his eyes and all of that, and I thought
why don't I try and make a film around it? And my friends who were the cinematographer who came with their big cameras and sound recordist and all, and then we tried to make something, and then we just thought that ki yaar, it is a great world about these kite runner kids, and here is a great landscape in front of us. One interview Anurag Kashyap had said one very absolutely brilliant thing, that when you cannot afford to put scale into your film, invite the scale of life inside your camera. You know, and he said that Gulal में जब सारा जयपुर दिवाली मना रहा था, तो हम शूट कर रहे थे. So when I went to shoot Ahmedabad, and the city was preparing for kite flying and all of that, we were in for a shock that कि यार हमने जहाँ जहाँ कैमरा रखा है इतना प्यारा लगा. And credit to my cinematographer Piyush, who comes from Odisha and who had no clue how Gujarat operates, मतलब, you know, so he was just stunned by the colors, and just like जहां भी वो कैमरा रखता था उसको लगता था अरे वाह कितना अच्छा शूट है, कितना अच्छा शूट है. But I realized that the concentration is for the subject, which is this boy. Let's try and focus on him and all of that. Eventually वो फिल्म जब बनी, 2 साल हमने, दोनों साल सिर्फ काइट फ्लाइंग फेस्टिवल के वक्त ही हम लोग वहां पे गए. पहले साल तो हमारे पास स्टोरी भी नहीं थी, पहले साल हमारे पास सिर्फ प्रोटैगनिस्ट था. एंड डॉक्यूमेंट्री में ये मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सीखी थी कि यार स्टोरी हो ना हो, प्रोटैगनिस्ट होना चाहिए. स्टोरी तो बनते बनते बन जाएगी. मतलब, यू नो, इवन विद शौनक व्हेन आई वाज आस्किंग दैट ऑल दैट ब्रीड्स में अगर वो दिल्ली राइट्स नहीं होते तो तुम्हारा थर्ड एक्ट क्या था, मतलब, यू नो. एंड शौनक हैड अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर फॉर इट, दैट इट इज इन द नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग दैट समथिंग विल हैपन, मतलब, because you are pursuing it for so long. So I thought that is exactly what happened with me while chasing Ahmedabad, because second year में हमको पता चला while chasing the kid that the terrace that they go to is the terrace that they are not supposed to. There is a security guard, बगल में मस्जिद है, मस्जिद के रूफ पे अलाउड नहीं है क्योंकि वहाँ मौलवी साहब है, वगैरह वगैरह वगैरह. मतलब, you know, so eventually the film kind of came together, and we had put together, and I had really no clue that I thought that documentaries have to be about important thing, this that, and like academic social implication, this that, and bunch of kids running around, क्या किसी को फर्क पड़ने वाला है. But totally, what a great surprise we were in for, मतलब, and मतलब the film was selected to so many festivals. But all of this never happened because this was the plan कि ऐसी short film बनाएंगे जिससे, it was basically the hunger के यार, मतलब अगर एक average short film बनी है जो सिर्फ 4 दोस्तों ने देखी है, तो अब उसका उसका तो लाइफ में कुछ नहीं वाला, और ऐसे तो मुझे कोई फिल्म देने नहीं वाला है. And that's how Ahmedabad happened. And then Affair also I had made for a part of a program for French Academy of Cinema, where they invite each filmmaker from a country every year, and there are 32 filmmakers in it, and then they basically ask you to make a 5 or a 4 minute film, mobile पे भी shoot कर सकते हो, about a specific cultural aspect of your country or your city or where you come from. So I thought the Mumbai couples are such a great thing that we all see, who are so anonymous to everybody. They make love and only the sea knows their secret, but the city doesn't know it. But you know, how can we kind of turn it around and all of that? So that is how, once we realized that this is the story, like Marine Drive पे shoot करना was such a big वो ना. So we were like, हम लोग बहुत बार रेकी की है मरीन ड्राइव की, me the cinematographer and sound recordist, and we would just go around that place बार बार. और हम समझते थे कि अच्छा यहाँ पे ना, जो छोटे कैमरा पे अगर आप जेवियर के स्टूडेंट हो या जय हिंद के स्टूडेंट हो, ऐसा कुछ कर रहे हो तो चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब, यू नो. तो हम लोग वैसे टाइप का समझे. फिर कब हम एग्जैक्टली सन सेट होता है और उसके बाद मैजिक लाइट कितने समय के लिए रहती है, और कब तक स्ट्रीट लाइट्स ऑफ मरीन ड्राइव शुरू हो जाती है, तो वो सबका मतलब, यू नो, कब लोकल ट्रेन में कम भीड़ होती है, कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन के बीच में, मतलब मरीन ड्राइव के पास से कौन सी बस मिल जाएगी हमें शूट करने के लिए, वगैरह वगैरह. ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हम समझ रहे थे, मतलब, यू नो. एंड इनफैक्ट हम क्या करते थे कि हम एक जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स का एक फेक लेटर हेड लेके जाते थे, जिसमें हम लिखते थे कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो आप उनको, मतलब, यू नो, पुलिस पकड़े तो, मतलब, इस तरह से. और फिर उसमें जो नंबर होता था वो मेरी वाइफ का होता था, तो वो बोलते थे, हम बोलते थे कि हमारे एचओडी है, आप उनसे बात कर लो. मतलब, तो ये कुछ चीजें हैं. और ये आई थिंक दिस आई कैन रियली कैन ओनली मतलब गिव द क्रेडिट टू वर्नर हेrzog, बिकॉज उसने एक्चुअली बहुत एक अच्छी चीज लिखी थी कि आस्क फॉर फॉरगिवनेस नॉट परमिशन, बिकॉज परमिशन तो इस शहर में कोई नहीं देने वाला आपको फिल्म बनाने की. सो बेसिकली माफी मांग लेना चाहिए तो बाद में, बट अभी तो मुझे ये शूट करना ही है, मतलब. एंड अगेन द आइडिया ऑफ इनवाइटिंग द स्केल ऑफ लाइफ इनसाइड योर कैमरा, कि मरीन ड्राइव इतना अमेजिंग स्केल है यार, मतलब वहां के कपल्स को हमने शूट किया, उनको पता भी नहीं है, और वो एनोनिमस भी है, मतलब, यू नो, द साउंड रिकॉर्डिस्ट सेड दैट आई कांट रिकॉर्ड साउंड इफ आई एम गोइंग टू बी नियर कैमरा बिकॉज this is so far. And also I said, okay, you and another crew member become a couple and sit besides right our couple, you know, so they are getting access to sound, and he and she can still portray as another couple, because
पीठी तो है, क्या फर्क पड़ने वाला है. Yeah. So those kind of things you kind of keep, and these kind of things happen when you've assisted for a couple of films, read, seen all these making के videos, or मतलब come up with ideas, stuff like that. But the affair actually helped me to get Kamyab more than Ahmedabad because it was free on YouTube. Yeah. The right people shared it, and then Manish Mundra, who of course presented affair also said that कि हाँ चलो now let's do Kamyab definitely and all of that. Yeah. मतलब Your first feature film, Drishyam has backed it, Red Chillies has backed it. I think Red Chillies, I don't know if it came at the stage of distribution or was it from beginning. See, that Red Chillies thing na, is a total stroke of luck, honestly. Because maybe a lot of hard work went into it, but also hard work without stroke of luck, nothing happens. But basically, na, Kamyab was being co-produced by another studio with Drishyam, and that studio had no clue on what to do with a film like this. 2018, we had finished Kamyab. बुसान में गई थी. बुसान इज एशिया का, उनको इंडिया का ग्रामर समझ में आता है कि आदमी का अगर दिल टूटता है ना तो बारिश होती है, मतलब हमारे यहाँ वायलिन बजता है. तो बुसान में जब हम गए तो मुझे रियलाइज हुआ वहां की ऑडियंस, मतलब तीनों शो हाउसफुल. वहाँ कोरिया इज लाइक मामी, मतलब दे रियली वॉच, दे डोंट नो अगला पिछला कुछ फिल्म का, लेकिन सब देखने आते हैं. और मतलब वो संजय मिश्रा मुझे पूछ रहे हैं वहां पे कि यार कि क्या तूने पैसे देके बिठाया इन लोगों को, ये क्यों आए हमारी फिल्म देखने, मतलब तो मैंने बोला अरे सर पता नहीं, यहाँ सारी फिल्म हाउसफुल होती है. So anyhow, so that, and after that, no, there was a very long lull because Berlin didn't get selected because already Busan जा चुके थे, तो Berlin क्या ही जाते. And then I was kind of getting frustrated कि यार अभी मतलब studio तो doesn't have any plan about it, and in like 6 months and all of that, and eventually I just got frustrated and I went to pitch another script to Rajkumar Rao, and that script was slightly political, so Raj didn't want to do, but he said Maddock wants to do another film, a horror comedy, why don't you do it? And I was in a situation where I was like कि यार अभी अगर मुझे कोई आके भोजपुरी फिल्म दे देगा तो भी मैं खुशी खुशी बना लूंगा, बिकॉज मेरी एक फिल्म रिलीज नहीं हो रही है तो यहाँ दूसरी मुझे मिल रही है, कितनी बड़ी बात है. सो आई वाज लाइक ठीक है, एंड आई जॉइंड रूही, एंड देन रूही की शूट खत्म की, मतलब, एंड देन मामी हुआ, एंड मामी में कामयाब प्लेड, एंड दैट्स वेयर रेड चिलीज का वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स सॉ इट, and he said that कि अरे this is a film that Khan Saab would really like it, and I didn't even know कौन बैठा था, but Drishyam said that we've called some important studio people to watch the film and all of that, and Mami में we had great response because we knew that यार ये तो मामी की ही तो film है यार at the end of the day, मतलब that kind of response. So then Red Chillies gave a call and said that can you come to the office and all, and I went to the office, and वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ था कि SRK will do the first tweet of कामयाब, and I was like what, मतलब तो it was like, and this is I'm talking about 2019 November, December, या 2019 December, तो 1.5 साल हो गया था फिल्म को बने हुए, रेडी हुए, बट रेड चिलीज केम इन एट दैट प्लेस, एंड अ फिल्म अबाउट फिल्म, यू वोंट बिलीव इट यार गाइस, मतलब अ फिल्म अबाउट फिल्म व्हिच एवरी स्टूडियो वाज टेलिंग दैट कि यार क्यों बना रहे हो, नहीं चलती है ये वो वगैरह. एसआरके केम एंड टोल्ड अस ऐसी फिल्में बिल्कुल नहीं चलती है, लेकिन हमारा दिल आता है उस पे यार, क्या करें, मतलब कि देयर इज ओम शांति ओम, देयर इज बिल्लू बार्बर, देयर इज फैन, देयर इज लाइक luck by chance में he has a cameo, so he's the kind of guy who loves this genre a lot, and I feel that probably that happened because all the people who had worked in the film had given so much of their heart and soul to the film na yaar. Nobody had calculated any money, Sanjay sir included, Deepak included, Isha, Sarika, all of us were just so happy. Like Piyush ka first film, Prashant the editor ka first film, Rachita ka I think music ka second film after Mukkabaz, my first film as writer director, we were just over the moon that कि यार मतलब हमारी पहली फिल्म को मतलब इतना बड़ा प्रोड्यूसर मिल रहा है, मतलब and that's the other part that I want to tell about filmmaking is that try and get collaborators who are more brilliant than you, and try and make your friends as collaborators, मतलब because they know the earnestness with which you are going. Maybe a senior DOP and all of that won't. Earlier I was thinking यार अहमदाबाद तो पीयूष ने शूट किया है, लेकिन मैं कामयाब उसको कैसे दे सकता हूँ, because I will need a senior film like a senior cinematographer who will guide me and all of that. And I was getting very nervous about it, but then I thought that कि यार अहमदाबाद भी तो कुछ भी नहीं थे तो बन गई थी, मतलब तो कामयाब में क्या ही इतना होगा, मतलब and Piyush and I had met on Lutera sets. He was shooting behind the scenes of Lutera, and he was shooting behind the scenes of Lutera so beautifully that I told Vikram that this guy shoots so well. He said he wants to be a cinematographer. So and he said of course you also want to be a director. So auntie who was Deepa auntie, who is Vikram's mom, who is the line producer, she put us both together in one room.
So then for 2 months in Calcutta and 1.5 months in Dalhousie, we were roommates. So we used to keep talking, exchanging whatever our likes, dislikes for cinema, this, that. There are a lot of places where we differ. There are a lot of places we really get the energy right, and and it happens. But you need that kind of a person rather than somebody who you are reporting to. मतलब लाइक मैं फर्स्ट कट ऑफ कामयाब एडिट पे जब बैठा था तो इतना बुरा था, मतलब मेरा तो माय हार्ट सैंक। मुझे ऐसा लगा कि शिट मैं क्या सोच के निकला था और ये क्या बन गया है, मतलब एंड आई कुडंट ब्लेम द एडिटर बिकॉज इवन ही वाज फर्स्ट टाइम एडिटिंग हिज फर्स्ट फिल्म। ही वाज न्यूटन में असिस्टेंट टू श्वेता मैथ्यू एंड आई थॉट दैट यार एटलीस्ट आई शुड हैव गॉन फॉर एन एक्सपीरियंस्ड एडिटर। नो, मैं क्यों इतनी मतलब वो दिखा रहा, अर्नेस्टनेस दिखा रहा था। अगर एडिटर चाहिए तो चाहिए अच्छा। बट देन सल्यूट टू हिज पेशेंस। He was like, Hardik, don't get anxious. क्या करना है बताओ, मतलब we'll give all the time, we'll give everything. And I am somebody who loves a lot of OSTs of films, पुराने नए। नेटफ्लिक्स में जो भी वो नीचे लिखा आता है ना कि ये अभी प्लेइंग, तो मैं वो तुरंत डाउनलोड कर लेता हूँ अगर मुझे अच्छा लगता है तो। मतलब सो बेसिकली यू ऑलवेज रिमेंबर गुड साउंड ट्रैक्स, गुड म्यूजिक, सो यू कैन ऑलवेज गिव देम अ रेफरेंस कि यार मुझे ऐसा टाइप का फील ला दो, मुझे इतना पेसिंग चाहिए, मुझे ऐसा करना है। तो फिर धीरे 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 करके हर सीन को उस तरह से एडिट किया। एंड ही really had the patience because the amount of money that he was getting paid to the amount of months he has given to Kamyab is just unbelievable. So you need those kind of soldiers also, not just talented and crafted and these genius. Arey, wow, what a shot taking he has done or she has done. But we also need the that labor force, that who will like sit with you and no matter what, रात के कितने बजे क्या हो रहा है. I believe in your vision. यार 5 रुपए की चाय पी लेंगे, लेकिन let's try and do this and crack this. So yeah, team building is something you definitely have to do while making your shots, so that reflects in your feature also eventually. And they also wait for the opportunity. They do shots for free. Piyush has not charged a single rupee for Ahmedabad My Famous or The Affair. जब कामयाब ओपन हुई, it reminded me of Luck by Chance का opening. Yeah. No, very honestly, Luck by Chance का opening is way amazing. We basically wanted that कि a quick flash में हम लोग कैसे इसकी typical journey हम दिखा दे, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ये किस तरह, ये ना जूनियर आर्टिस्ट है ना कोई प्राइमरी एक्टर है. There is that one bridge in between which was very important to tell people that he's somebody who people know but they don't know his name. मतलब जैसा मैंने उनको बस में देखा था जब कि ये ऐश्वर्या राय के बाप थे यार, सरफरोश आमिर खान के डेप्यूटी थे या जो भी, मतलब और अब मैं उनका whatever. So the idea was that. So and the montage is of course fun. You invite the audience in. वो फीबी वाला जो quote है ना, मतलब कि disarm your audience with humor and then give a punch in the gut. So that is a great rule to follow. Third act of this film, जहाँ पे ये फिल्म ने seriously दिल जीता है, इसमें I was like, while the film was going on, I was thinking, where is this going? Right? We kind of make his film with the assistant director finally, or what will happen? But then I realized it is a film about an industry at a larger level, but it is also about human dignity. Like, how he claims his own self by all that, like shedding all those characters. In fact, there's a scene earlier where they talk about someone dying alone, which is that. I thought there's a sort of foreshadowing over here. And like he's going to die alone by himself and all that. But in fact, that hospital scene also I didn't want, because in these kind of films, the hospital scene is a very big cliche. So I was like, चलो death, monologue, ये सब तो मुझे करना ही नहीं है. मतलब what are the other ways? But then hospital was a minor speed breaker that I was okay to go with. Sometimes a cliche is a cliche because it works. मतलब so but that doesn't mean कि because you don't have any ideas तो ये कहावत के नाम पे cliche छाप दो. मतलब कि ऐसा भी नहीं करना चाहिए. So and hospital was a very minor scene in that way. मतलब but yeah, other than that I had another point that you had mentioned about. Important point. Always ensure that climax is amazing. ठीक है, मतलब जो भी फिल्म बनाओ, लाइक मैं अहमदाबाद बनाया है या अफेयर बनाया है, कामयाब बनाया है, रूही भी बनाया है, उसका क्लाइमैक्स बेकार था, फॉरगेट इट, मिस्टेक होती है. पर कैसे भूल गए रूल कैसे भूल गए रूही के टाइम पे? मैं बता रहा था ना, जब कामयाब रिलीज ही नहीं हो रही थी तो मुझे जो मिल रहा था मैं खुश था यार, मैं कुछ भी बना देता, तब ऐसा हाल था. मतलब सो मतलब बट इट्स ओके. आई थिंक आई स्टैंड बाय रूही. It was a very funny script in the first half. Second half was being written on the set, so maybe those are some mistakes that, and the power was not with me. So but as a director, that is also something that you need to. I learned that producer, actor, writer सब आगे बढ़ जाते हैं, सबके पास और बहुत कुछ करने का होता है.
Director is blamed for the sinking of the ship at the end of the day. Yeah. So if you are going to take up something, then ensure that boss, either it is going to be my way Yeah. or but that doesn't mean you become stubborn. Yeah. You take the pointers from everybody, but on the day of shoot you should feel and do what you really feel is कि यार ये मैं अपने आप को आईने में देख सकता हूँ, Yeah. ये 10 साल बाद या 8 साल बाद या जो भी, Yeah. सो या आई मीन क्लाइमैक्स इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और अभी भी मैं जो भी 2-3 स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ ना, बहुत बार मैं बहुत खुश होता हूँ, सेटअप ग्रेट है, अरे वाह यार कि वो एक्शन भी बहुत अच्छा है, फिर मिड पॉइंट भी बढ़िया हो रहा है, क्लाइमैक्स निकल रहा है, बट वो तो सोच लेंगे ना, नहीं वो मत जाओ उससे पहले, तो वो थोड़ा Yeah. है। एक चीज, one thing which I wanted to ask you कि कहाँ से, where does the courage come from? Like, sort of like your film was on a secondary actor जिसके भरोसे पे फिल्म चलना, like there's a big question. It's also like या backing and all that. So didn't you for a second think, should I hire a more recognized actor? And the personality of a protagonist yeah. or the main actor often is the personality of the film. It is the director after a point of time is doing whatever he wants to do, especially if you are making a film about an actor. Yeah. So if Sanjay Mishra is not doing the film, the film is not working. Yeah. I can tell you today, whatever might be her politics, but if Kangana was not doing Queen, no, it wouldn't have worked at all. I was an AD on that film. Yeah. I know what she brought to the table and how amazing she was. Yeah. लड़कियों को इंडिया में डकार मारना अलाउड नहीं होता है, उसका डायलॉग था, उसने Yeah. लिखा था, वो Wow. हंगामा हो गया जो गाना खत्म होने के बाद, शी एंड विजय Yeah. लक्ष्मी, व्हाट अ लाइन इट वाज, Yeah. दैट होल लाइन के मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा, she wrote it. How have you put your foot forward and negotiated and kept your ground when there are so many people जो लोग का because of their power और influence इतना ज्यादा weight उनकी बात का हो सकता है, एंड आपको आराम से लग सकता है कि कि आप तो नए हो, शायद वो बोल रहे सही बोल रहे होंगे, तो वो काफी बार बोलते हैं ना कि फेक इट टिल यू मेक इट, बट उसका मुझे मतलब Yeah. समझ में नहीं आता है काफी बार। नहीं, वो मत करना कभी भी। सी यू हैव टू बी वेरी ग्राउंडेड, ठीक है, एज अ फिल्म मेकर नो, बिकॉज स्टोरीज वहीं से आएगी, आप अपने हाई हॉर्स पे बैठोगे तो स्टोरीज पता नहीं, सो आई एम अ डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट बाय ग्रेजुएशन, ठीक है, तो आई यूज्ड टू वर्क इन अ सूरत डेयरी, सुमूल डेयरी, ठीक है, मस्ती दही सेक्शन का मैं ऑफिसर था। मैं वहां से फिर एडवर्टाइजिंग गया, एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर बना, कॉपीराइटिंग के वक्त पता चला कि यार ये ideation, music, painting, photography, writing, everything comes together in filmmaking. So why don't I try and go in filmmaking? And of course, फिर जामिया गया, जामिया के बाद फिर बॉम्बे आया, एडी वगैरह सब, सो अब इतनी दूर से वो आप आए हो ना, कि अभी जो आप मेन आपके लाइफ का जब सबसे इंपॉर्टेंट आपको डिसीजंस लेना है ना, तो वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, और वो जो बात इन्होंने करेज की बोली ना, कि वो करेज कहाँ से आता है, वो प्लान बी नहीं होने से आता है, ठीक है, मेरे पास प्लान बी नहीं है बॉस, मैं वापस डेयरी में जाऊंगा, मर जाऊंगा, मुझे आता ही नहीं है कुछ, मैं बर्बाद कर दूंगा चीज, आइसक्रीम, मिल्क पाउडर, जो भी होगा, सो अभी मुझे यही सीखना है और अभी मुझे यही करना है। तो इसके लिए जो भी हो ना, दिन रात एक करो, बी द मोस्ट एफिशिएंट पर्सन ऑन सेट, एंड कोई काम छोटा नहीं होता। जो 3 की लर्निंग्स की मैं बात कर रहा था ना, उसमें एक पहली अभी बता देता हूँ, वो है डिग्निटी ऑफ लेबर। जब हम अहमदाबाद शूट कर रहे थे ना, तो हम लोग खुद ही कैमरा लेंस लेके, मैं पीछे वो उसमें लेके जाता था, स्कूटी एक रखी थी हमने, जो इधर से उधर हम चले जाते थे, सनसेट हो रहा है, वहां भी ये लेंस चाहिए, ये इधर भी हम 2 सिनेमाटोग्राफर्स लेके गए थे, सो जो भी होता। और वो क्वीन में हमने सीखा था, मैंने एक डच क्रू था वहां पे, वो ना सिर्फ 6 लोग थे, वो 6 लोग जो थे ना, वो प्रोड्यूसर्स थे उसमें से 4, लेकिन वही खाना लगाते थे, वही ट्रैफिक कोन्स लगाते थे, वही आपको कैब में ड्रॉप करते थे, खुद की गाड़ी चला के आपको होटल पे ड्रॉप करते थे, दे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज लंच, एवरीथिंग। सो आई यूज्ड टू थिंक दैट लुक एट देम यार, दिस इज व्हाई वी आर बिहाइंड एज अ साइकोलॉजी ओनली, कि उनको अपना काम करने में कोई शर्म नहीं है, उनकी तो फिल्म भी नहीं थी क्वीन, लेकिन उनको पता था कि भाई अगर ये एम्स्टर्डम आए हैं 1.5 महीने के लिए ये क्रू, तो ये हमारा फर्ज है इनको इतने दिनों में ये शूट निपटा के देना, बिकॉज दैट इज व्हाई दे आर पेइंग अस, सो वो एफिशिएंसी मैंने वहां से थोड़ा सीखा, और फिर अपने आप, अगर हम हमारे काम में इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा, ठीक है। और आपको अपने आप को जज करते रहना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं स्टीव मैकरी के फोटोग्राफ्स देखता हूँ और मेरे फोटोग्राफ देखता हूँ, तो मुझे लगता है भाई कहाँ है तू,
मतलब ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अच्छा ये अच्छा काम है ना, ये दुनिया का सबसे सेलिब्रेटेड काम है ना, तो क्यों ना हम इससे कुछ चीजें सीखे। इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी फ्रेमिंग क्या है, ये क्यों अच्छा है, इन लोग ऐसी लाइट क्यों यूज करते हैं, ओ अच्छा इन लोग मैजिक लाइट यूज करते हैं। सो दोज आर द थिंग्स यू काइंड ऑफ कीप पुटिंग इनसाइड यू एंड स्टार्ट ग्रोइंग। 2011 इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में जब था ना, तो 2 अप्रैल मुझे याद है, मैं उस दिन बॉम्बे में सारे लोग जायंट स्क्रीन पे देख रहे थे। तो मैंने ना एक अब्बास कियारोस्तामी की एक फिल्म के बारे में सुना था, जिसमें वो सिर्फ रिएक्शन, स्वीट शिरीन या ऐसा कुछ नाम है, जिसमें वो सिर्फ रिएक्शन शूट करते हैं औरतों का फिल्म देखते वक्त। तो मैंने सोचा व्हाई डोंट आई ट्राई एंड टेक ओनली रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हाइल द फाइनल इज गोइंग ऑन एंड इंडिया माइट बी लूजिंग और विनिंग, आई डोंट नो, but let's just take reactions of people, and I made a video out of it 3-4 minute ka, which Shad Ali saw, and Shad Ali called and said that what a video yaar, what a great idea you made, and thankfully India won. So that helped me to get a second unit job on Tendulkar's documentary. If you do good work, if you keep pursuing it, people will notice. वो मरूफ करके वो जो बंदा जो लखनऊ के वीडियो बनाता है, आप देखो यार उसका क्या क्राफ्ट है। मतलब मैं उसके वीडियोस देख देख के हर एक चीज नोट करके मैं सारी जगह पे, लखनऊ मेरा ससुराल है, सो आई वेंट एंड लाइक ये मैं ये भी शिकंजी पीऊंगा, मुझे ये भी कबाब खाना है, ये भी निहारी चखूंगा, मतलब बिकॉज ही इज मेड दोस वीडियोस एंड ही नाउ अपेरेंटली हैज अ क्रू अंडर हिम। सो या आई मीन इट बेसिकली इज समथिंग दैट यू ट्राई, कीप ट्राइंग एंड डूइंग एंड कीप रिफाइनिंग योरसेल्फ इन द क्राफ्ट। जैसे मैंने ना अहमदाबाद में फेमस के एडिट के वक्त खुद ने एक चीज सीखी थी कि फिल्म में मुझे ह्यूमर इन्फ्यूज करना है, ठीक है। तो ये मैंने चीज कर ली, बट बाद में मैंने हरजौक की ये कहावत पढ़ी, ठीक है, कि व्हेन अ कैरेक्टर इज लाइंग, नो, इंडल्ज देम, ठीक है, बिकॉज द डिसर्निंग ऑडियंस इज इंटेलिजेंट इनफ टू कैच द लाई ऑफ दैट पर्सन। तो वो सिक्योरिटी वाला बंदा ना झूठ बोल रहा था कि अरे वो मेरा प्लम्बर आया था ना, वो दोस्त, अभी वो इतने दूर से आया था, तो मैं उसको कैसे मना करूं, इसलिए उसके लिए मैंने पतंग, बाकी तो मैं पतंग, ये ऑल दैट हैपेंड, मतलब बहुत अच्छी एडवाइस है एक्चुअली, लेकिन ये whenever someone is lying, indulge them both yeah, while writing as well as while engaging in everyday yeah, conversations. So yeah. बहुत सही है, लाइक और दूसरा आई थिंक बड़ा लर्निंग निकल के ये आ रहा है कि वर्नर हज़ार्ड को बहुत सारा पढ़ना चाहिए। और हाँ, लाइक उसकी एक किताब है, अ गाइड फॉर द परप्लेक्स। यस, और क्रिकेट की भी बात हो रही थी, तो देयर इज अनदर क्रिकेट रेफरेंस इन बकनर, जो 90s किड का अगेन नाइटमेयर, उसका भी Yeah, रेफरेंस है काफी लाइक yeah. इसमें, बट That एनीवे। is that is Deepak's genius. अच्छा। That dialogue wasn't there, but because हाँ Deepak read the script and there were Don Bradman का reference था, so हाँ he said एक बकनर का भी डालते हैं. So I said yeah, definitely, why not? So this is something that again another advice that when you are going to make your first film ना, spend a lot of time with your actors, ठीक है, because set पे time नहीं मिलेगा इतना, और set पे वैसे ही सब लोग अपने अपने में होते हैं। तो हाँ हम लोग ना पहले मिलते थे संजय सर के घर पे, मतलब एंड वी वुड टॉक अबाउट एवरी सीन, लाइक एवरी डे 4 या 5 सीन डिस्कस होते थे, ऐसे हम 10-15 दिन मिले थे। How do you decide that this is the time that you need to give to a particular emotion on the screen for it to make actually sense? When you see the film with the cut, the first cut or second cut or whatever cut with other 3-4 friends of yours who are going to be kind enough to not to criticize you, मतलब not over criticize you, but at the same time give you the right advice। देखो आप अपने आप में जब देखते हो ना, तो सब कुछ ग्रेट लगता है, आपको लगता है कि वाह यार क्या बात है, मतलब मैंने तो क्या काम कर लिया। लेकिन जब आप 4 लोगों के साथ वही काम देखते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार यहाँ पे तो मतलब उसने फोन निकाल दिया, या इतना वो मोमेंट जो मैं सोच रहा था वो आया नहीं, या वो फीलिंग नहीं आई, या तो ऐसा कभी कभी ये भी लग सकता है कि यार इतना जल्दी क्यों काट दिया, अभी तो समझ में भी नहीं आया इन लोगों को कि मतलब व्हाट द कैरेक्टर फेल्ट, तो आई मे बी नीड टू एक्सटेंड दिस मोमेंट अ लिटिल मोर, राइट। ऑफ कोर्स शूट पे वो तुम्हारे पास होना चाहिए, वरना एडिट में क्या ही कर लोगे, मतलब so वो फोर्स स्लो मोशन कभी मत करना। नंबर 1, नंबर 2 इज ऑफ कोर्स वॉचिंग अ लॉट ऑफ सिनेमा, so sometimes European filmmakers cut out very fast from a certain emotion, मतलब एक क्लोजअप में बहुत बड़ी चीज बोल देते हैं उन लोग, बिकॉज दे हैव अ सर्टन, देयर ऑडियंस इज वेरी इवॉल्व्ड यार। हमारे यहाँ ठोक पीट के समझाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे यहाँ ऑडियंस इतनी इवॉल्व भी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं। तो अब जैसे मुझे पता है कि कामयाब 2.5-3 करोड़ की फिल्म है ना, कामयाब पे 30 करोड़ का या 300 करोड़ का प्रेशर नहीं है कि मुझे उस पर निचोड़ निचोड़ के इमोशन या बहुत सारे वायलिन बजा बजा के मतलब आपको समझाना पड़ेगा कि दिस इज व्हाट हैपेंड। So I actually know Nitin sir, Nitin Vaid from Asan, and when I was actually talking to him, what he said is, he was like, send the script to me and 2 pager. I was like, okay, sir, I'm sending it to you right now. And he was like, okay, don't send it.
first register it. And I was like, where do I register? Like, do I register like in some kind of media? And he was like, no, no, Correct. no, no, screenwriting association, you need to register. And Yeah, I was yeah, like, okay, okay. yeah. So this is the first thing that comes to my mind, that where should a person go for like a person from a tier 3 city? Mhm. Whom should we take the script to, who has no knowledge of the film industry? Who No, should so we that say is what, that is what, just that two-pager which Nitin said is absolutely correct. Once that two-pager is registered with SWA, you can register it online, of course, you know that. And once you send it, na, the log line, okay, the log line should be such a log line, na, that it should instantly want that person, executive, whatever, because nobody wants like कि तुम आके मिलो फिर pitch करो, because that is wasting their time also. In fact, if you send it over email, it's better because I can read it at my convenience, मतलब, you know. So the log line is the one that you really, really work hard for. And what is the log line? Log line is like half of your trailer in that sense, है ना? कि मतलब आप दंगल का लॉग लाइन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्स नेशनल चैंपियन को मतलब अपने नेशन की ग्लोरी लानी है इंटरनेशनल लेवल पे, और वो सोचता है अपने बेटों से करेगा, लेकिन उसको बेटे नहीं बेटी होती है, लेकिन बेटियां होने के बाद उसको रियलाइज होता है कि गोल्ड तो गोल्ड है, छोरा लावे या छोरी। तो यू रियलाइज ओके व्हाट अ ग्रेट स्टोरी यार, मतलब कि लड़की ने अपना जिंदगी का अमाउंट सेव किया है यूरोप के हनीमून में जाने के लिए, और शादी के एक दिन पहले लड़का शादी तोड़ देता है, और लड़की सोचती है कि मतलब तो क्या हुआ अगर उसको नहीं आना है, मैं अकेले हनीमून पे जाऊंगी, एंड हाउ शी लर्न्स थिंग्स अबाउट लाइफ। ग्रेट। सो बेसिकली योर लॉग लाइन नो हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर, वेरी क्लियर, ठीक है, कि ये है, ये वर्ल्ड है, ये उसका क्राइसिस है, और ये उसका एक्शन है, प्लान टू एक्शन है, एंड दैट इज द ओनली वे। वो कुछ बिहार से तुमको बुलाएंगे कि यार बॉम्बे आ जाओ यार, तुमको क्या लगता है इसका और कैसे हो सकता है, या क्योंकि इनके पास इतना मटेरियल आता है, इनके पास टाइम है नहीं, वो सिर्फ लॉगलाइन पढ़ेंगे और आगे कर देंगे। तो ट्राई एंड वर्क for logline as much as you can. What do you suggest for, I mean, I always, I am passionate towards acting. So what do you suggest for an actor like me to do? Acting is Yeah. so different and it's so competitive ना, मतलब अभी उसके लिए तो एक अलग सेशन है, और एक्चुअली एक्टर्स उसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे। पर जहां तक मैं जानता हूँ, एक्टर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो है, जो वो नहीं करते हैं, मुझे ऑफन अक्सर लगता है, और बहुत कम एक्टर्स हैं जो करते हैं, रीडिंग। क्योंकि जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हो, अच्छी मतलब नॉवेल्स पढ़ते हो, तो आप, क्योंकि क्या है कि एक्टर को तो कितने सारे किरदार जीने हैं या परफॉर्म करने हैं, जो वो अपनी जिंदगी में इतना सीख नहीं सकते, लेकिन वो रीडिंग करेंगे तो वो जर्मनी के किसी एक बंदे की कहानी भी समझ सकते हैं, और श्रीलंका के किसी एक तमिल रिबेल की भी व्यथा समझ सकते हैं। तो मतलब तो मुझे लगता है कि रीडिंग जितना आप अपना रखेंगे ना, वो आपके अंदर समाता जाएगा और आप परफॉर्म उस तरह से करेंगे। और ऑफ कोर्स समझिए कि टेलीविजन की एक्टिंग अलग होती है, फिल्म की एक्टिंग थोड़ी सी अलग होती है, स्टेज की एक्टिंग थोड़ी सी अलग होती है, तो कैसे आप अपने आप को उसमें ट्रेन करते रह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बी विद द राइट कंपनी, ठीक है, जस्ट लाइक बी विद द पीपल एक्टर्स हु यू लाइक। सपोज एनएसडी वाले कोई पसंद है, या मंडी हाउस वाले कोई पसंद है, या पृथ्वी वाले, उनके काम देखते रहो, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते रहो। कामयाब में जो सबसे फेमस डायलॉग है जो बार बार आता है कि एंजॉयिंग लाइफ, और ऑप्शन क्या है? इट सीम्स टू कम फ्रॉम अ सैड स्पेस की, और ऑप्शन नहीं है तो एंजॉय कर रहे हैं, नहीं करना चाहते, या फिर मतलब समझ रहे हो, बट यू सीम टू बी अ पर्सन हु बिलीव्स इन दिस फिलॉसफी। एंड तो मतलब मेरा पर्सनल सवाल ये है कि हाउ डू यू रियली ब्रिंग एंजॉयमेंट इन योर लाइफ व्हेन यू फील लाइक थिंग्स आर गोइंग डाउनहिल, और समटाइम्स व्हेन यू लूज फेथ इन योरसेल्फ, तो ऐसा लगता है कि आई डोंट डिजर्व एंजॉयमेंट, वो भी होता है। Yeah, that's my बट question. सी वो इट्स लाइक दैट मीम दैट एवरीबॉडी नोज दैट इंस्टाग्राम पे है ना, कि 10% जो आइसबर्ग का टॉप है वो लोगों को लगता है फिल्म मेकर्स लाइफ है, 90% नीचे है, मतलब सो दैट इज एक्चुअली अ वेरी एप्ट रिप्रेजेंटेशन। द लाइक 2022 आई वांटेड अ फिल्म टू गो ऑन फ्लोर, आई डिड ऑल द हार्ड वर्क, एंड मतलब एवरीथिंग हैपेंड, लाइक लुक टेस्ट, एक्टर्स, कास्टिंग, लोकेशन, रेकी वेकी सब लॉक, and like 7 days before the shoot we were told that we cannot go on floor because the studio has some issues with the script, this that blah blah. Eventually that film didn't happen. 2023 I had put a show together, that everything was going great, such a funny great story of a very very particular community, so well said by a writer who belongs to that community with so much passion, everything. Like again same 2023, 15 days before the shoot we were told sorry we cannot go on floor because there are some studio issues this time. So it's a lot of heartbreak, one has to. So I realized it that a lot of people have to, वो ना सिनेमा के द्वार पे बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स तो आपको अर्पण करने ही है,
मतलब तो मे बी आई वॉज वेरी लकी स्टार्ट में कि यार अहमदाबाद को नेशनल अवार्ड मिल गया, फेस्टिवल्स चली गई, अफेयर लोगों को इतनी पसंद आ गई, कामयाब मतलब रेड चिलीज ने प्रेजेंट कर ली, शाहरुख खान आके ट्वीट कर रहे हैं वगैरह वगैरह. एंड नाउ 2024 वी आर सिटिंग हियर. 2022 that film didn't go on floor. 23 that series didn't happen. Another series that I was writing with another big platform didn't go on floor. 3 एपिसोड के बाद उसको उन्होंने बोला अरे this is not going the way we wanted, blah blah blah. And I finally had this small love story that at least came out. So I was feeling so, the worst thing that Vasundhara amongst all these 2 years is that there is not a single holiday that I have taken. There is not a single holiday I have taken, but yet there is no work, there is no output to show. And that is, can anything be more tragic? But I think it's the nature of the job. मेरे एक फ्रेंड ने ना अभी एक फिल्म बनाई है एक स्टूडियो के लिए. उसकी ना स्टूडियो वालों की स्क्रीनिंग थी, जैसे मेरे वाली थी ना वैसे टाइप के उसके स्टूडियो वालों की स्क्रीनिंग थी, और उसकी फिल्म की धज्जियां उड़ा दी. ठीक है, धज्जियां उड़ा दी स्टूडियो वालों ने. बीच में भी वो देख रहा था कि मोबाइल पे लगे हुए हैं, किसी और चीज पे जोक मार रहे हैं ना, फिल्म में देख रहे हैं. एंड ही वाज फीलिंग सो सैड. ही कॉल्ड मी एंड सेड व्हाट आर यू डूइंग, आई नीड अ ड्रिंक. सो आई सेड अरे कम होम यार, एंड ही सेड दिस. एंड देन ही टोल्ड मी दैट अरे यार ये ऐसा ऐसा हुआ, and all of that. मैंने बोला अरे यार I can totally understand it, I have gone through something like this and all. But then he said, you know what, 10 साल पहले मैं यही इन्फिनिटी के सामने अपना रेज्यूमे लेके घूम रहा था फाइल में, आज मेरे पास एक फिल्म है यार, क्या हुआ उन्होंने गाली दे दी तो फिल्म तो है मेरे पास. So I felt like what a great way to, because he's my friend, so I mean and I can completely believe in this philosophy that what he has also gone through, कि हाँ यार कि किसने सोचा था कि हम ये अवार्ड जीतेंगे वो अवार्ड जीतेंगे, हमने सोचा था फिल्म बन जाएगी, वही बहुत बड़ी बात है. So that so the thing is that yes, there are a lot of expectations that you have from yourself, and maybe you are not able to perform at that level, but always believe Hansal Mehta delivered Scam at 52. It's a best case study, boss. he delivered Scam का बजट और Decoupled का बजट सेम था. Can you believe? Scam is a period show. Hansal sir worked so hard. What casting he had done for Scam. I am a Gujarati. I was feeling so jealous that ये सारे गुजरात के इतने अच्छे actors को मैंने cast क्यों नहीं किया है. So there are lot of these things that you go through in daily life, but you have to enjoy life basically. ठीक है, you have to enjoy the music that you listen to every just ensure that every 6 days एक म्यूजिक सेशन अपने लिए रखो, चाहे गाओ ना गाओ चाहे सुनो, बट म्यूजिक जब घर में होता है ना तो आपको कितना वो स्पेस लाइव लगने लगता है. आप अपनी जिंदगी के मेमोरीज के, ड्रीम्स के, एम्बिशंस के, मोमेंट्स के सारी चीजें पूरी होने लगते हैं. ठीक है. एंड एक चीज मैंने रियलाइज की है कि जब आप कोई ऐसी चीज कर रहे हो ना, तब एक ऐसी वाइल्ड हॉबी रखो अपने लिए. ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है वो हॉबी. मेरी एक्टिविटी क्या होती थी, मैं यूट्यूब पे ना दुनिया भर की रेलवे के वीडियोस देखता हूँ. इक्वेडोर में कौन सी ट्रेन चलती है, ठीक है, जापान में एक ही नाइट ट्रेन चलती है, वो क्या होती है वहां पे, उन लोग नाइट सूट भी देते हैं पैसेंजर्स को. ईरान में कौन सी ट्रेन चलती है, वो इस्तांबुल से जर्मनी एक ट्रेन चलती है, वो कहाँ बीच में चेंज होती है, रोमानिया में, बल्गेरिया में, वगैरह वगैरह. बस आई जस्ट लव दिस, सो दैट रियली हेल्प्स मी बिकॉज दैट इज total time pass. It is not going to help me in any way in my career, but it is just a great little pleasure that you give yourself. So find that. In terms of creative differences, like what is that one point of conviction? Suppose if somebody, if I'm making a film and मेरा DOP सोच रहा है कि कुछ वैसे होगा, नहीं ऐसे फ्रेम अच्छा लग रहा है. What is that one point of conviction that we go ahead with? इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, क्योंकि क्या है ना, ईगो नहीं आना चाहिए. सेल्फ इज नॉट समथिंग दैट अरे मैं यही सोच के आया हूँ इतने सालों से. जैसे अगर वो ईगो डायरेक्टर ऑफ क्वीन रखता तो वो क्वीन में कितनी सारी चीजें जो कंगना ब्रॉट ऑन टेबल, वो, एंड ही रियली वाज इनवाइटिंग ऑल ऑफ इट, कि हाँ यार दिस इज एडिंग टू माय कैरेक्टर, दिस इज एडिंग टू माय film. So I would say that sometimes especially when it is a director actor conflict, I would say the director should go by what the actor is feeling. Because ना कितना भी इंस्ट्रक्शन देने के बाद ना तुम सब पीछे चले जाओगे कैमरा के, दैट पर्सन इज गोइंग टू बेयर हिज और हर सोल. सो इट डिपेंड्स. जनरली एक्टर को एक्टर का करने दो, बट फिर उसको समझाओ कि अगर ऐसा करेगा तो, या ऐसा करेगी तो देख ले एक बार, एंड देन व्हाटएवर ही और शी फील्स, अ गुड एक्टर विल आल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ यार एक्चुअली यू आर राइट, एक ये भी ले लेते हैं. जैसे डीकपल्ड में ना बहुत बड़ा डिबेट था प्लेटफॉर्म प्रोड्यूसर्स और मेरे बीच में. उन्होंने बोला कि म्यूजिक नहीं होना चाहिए, कहीं भी म्यूजिक नहीं होना चाहिए. तो मैंने बोला कि आई अग्री दैट्स कर्ब योर एंथुसियाज्म एंड साइनफील्ड का लैंग्वेज, बट हम लोग ना ये इंडिया के ऑडियंस को पहली बार इसके लिए एक्सपोज कर रहे हैं. तो मैं ना तारक मेहता वाला साउंड भी नहीं डाल सकता कि पे या ऐसा टाइप का.
बट एट द सेम टाइम मेरे लिए अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ जगह पे, और दैट आई कैन बी रॉन्ग इन इट, ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग इन इट, आई कैन बी राइट अबाउट इट, आई डोंट नो। बट मैंने क्या किया कि मैं ना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को अंडरलाइन करने के ना मैं बेस यूज करता हूँ, ठीक है। तो जब इतना चीज होगा ना तो आपको पता चलेगा कि देख ये ना आर्या की लाइफ में कुछ तो ऐसा नखरा हुआ है जिससे ही गॉट इरिटेटेड, ठीक है। एंड माय कैमरा वाज स्लाइटली लाइक दैट, अ लिटिल हाफ मॉक्यूमेंट्री ट्रीटमेंट, बिकॉज आई कांट गो फुल्ली वाइल्ड लाइक दैट। सो दैट टाइम दे द प्लेटफॉर्म heard that music and they realized no Hardik you are right कि you know the bass part of the music is working rather than, because we thought music मतलब वो हिंदी फिल्म जो पारिवारिक फिल्में वाली होती है ना पीपू, मतलब ये ना, तो मैं अभी पीपू नहीं डालने वाला यार, मतलब मैं उसका कुछ अलग तुमको करके दे रहा हूँ। एट द सेम टाइम द डिग्निटी ऑफ द शो विल बी देयर एंड येट द ह्यूमर विल आल्सो लैंड। और मनु की राइटिंग इतनी फनी है कुछ जगह पे कि you have to kind of balance it and arrive at the punchline, because even before you arrive at punchline there are 3 more punchlines that have gone. See, nowadays there is a very big market for the different language content in OTT and even in the theater. Do you think that a script which is written for a Hindi film should be made in some other language, which to see if it works or not? Your question is so amazing that I am actually going through this Jagdojahad right now in my life. That there is a script that one of my very dear friends has written, and it's so amazing. And yet I feel like maybe the Hindi film producers are not getting it, or maybe they don't trust us, or I don't know what. So I am actually contemplating that what if I make this in a different language, because अगर मंजूमल बॉयज टाइप की फिल्म हिंदी फिल्म के स्टूडियो के पास जाते तो शायद नहीं हो पाती, क्योंकि उन लोग समझते कि सर्वाइवल ड्रामा है ना, ठीक है यार वो देख लिया लोगों ने ट्रैक, मतलब यू नो, बट फ्रेंडशिप कितना बड़ा इमोशन है मंजूमल बॉयज में, मतलब यू नो, एंड दे हैव डन इट सो वेल। सो अब मंजूमल बॉयज की सक्सेस देखने के बाद वो बोलेंगे है क्या कुछ ऐसा सर्वाइवल ड्रामा, बिकॉज हियर everybody has EMI to pay, you know, in studios, so they will not take too much of a risk after a point of time, they will say that के, और अगर आप ये बोलोगे कि ये ना फिल्म चाइना की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म है, तो क्या तो लाना करते हैं, मतलब यू नो, सो दैट बिकम्स अनफॉर्चुनेटली द की फॉर यू टू सेल, नॉट योर क्राफ्ट, नॉट योर कॉन्फिडेंस, नॉट योर स्क्रिप्ट, बट चाइना का बॉक्स ऑफिस किया है ना, इसलिए तुम बना लो यार। As an aspiring filmmaker, I feel a lot of frustration. I'm a lot of time I'm just angry. I don't know why, but I'm just angry. नो यू कैनॉट बी एंग्री बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। वो क्या सोशल मीडिया पे लोग लिखते ही रहते हैं ना पूरा टाइम, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया, अरे क्या कर लोगे यार तुम पोस्ट करके आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब यू नो, ट्राई एंड पुट some enjoyment in your life, मतलब you know, and maybe if you have enjoyment in your life तो वो आगे reciprocate होगा। Try and create an approach which is even if not full of optimism, but there is some optimism into it, there is a lot of hope into try and telling stories. So and you never know what reciprocates with whom, yeah, that's the beauty of it. Like when you know you're in if you make a good piece of work, you know, your Instagram DM is the best reflection। मतलब मैंने देखा है कि कितने लोगों ने क्या क्या प्यारा प्यारा मैसेजेस भेजे हैं, मतलब यू नो, और मैंने ये भी देखा है कि जब कुछ नहीं वर्क हुआ है तो मतलब कितना अचानक DM ड्राई हो गया है, या गालियां भी लिखी है किसी ने, और मतलब यू नो ऑल ऑफ दैट। आई थिंक ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और किताबें पढ़ो, अच्छा म्यूजिक सुनो, न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस खास करके, अगर कोई अभी तक टाइम्स ऑफ इंडिया सब्सक्राइब कर रहा है तो प्लीज यार, यू आर टू 19th सेंचुरी, मतलब यू नो, तो सो या आई थिंक एंड देन मे बी चूज, बिकॉज मैंने जो ये मेरी जो 2022 में जो फिल्म नहीं बन पाई ना, it actually came from a headline from an Indian Express जो actually एक केस हुआ था, and when I told the producer they were so excited with it कि this is so amazing यार, मतलब कि अगर इसकी कहानी, वो अलग बात है कि the studio didn't find that exciting or maybe they didn't find my route exciting about this story, but then I said that this is the route I want to take, मतलब you know, तो तुमको अगर इसका सिर्फ mainstream approach चाहिए तो you know the best example is वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन क्या थकेला फिल्म था, है ना, बट वही बैटमैन जब आप मैट रीव्स वाला देखते हो तो क्या ग्रंजी, क्या फीलिंग, क्या मतलब एक्शन भी है, सिनेमाटोग्राफी वाइल्ड मैड है, कैरेक्टर्स भी है, म्यूजिक भी है, बट फिर भी अपने आप में एक वर्ल्ड है, और फिर भी कितना अमेजिंग है, मतलब यू नो। सो आई फील लाइक वही है, मतलब कि कोई भी कहानी को आप कैसे देखोगे, और कोई भी वर्ल्ड के व्यू को आप कैसे देखोगे, उससे आपके काम में और उससे आपके वर्क ऑफ आर्ट में फर्क पड़ेगा, मुझे लगता है वो
बिकॉज उसी के लिए तो लोगों को देखना है, वरना तो ऑल इंडिया रैंक अभी मतलब वरुण क्यों बनाते, जब मैं बताया ना 12th फेल के बाद भी अब ऑल इंडिया रैंक अगर आप बना रहे हो मतलब तो ठीक है ना, मतलब वो उसका वर्ल्ड व्यू कितना अमेजिंग है कि टू ब्रिंग दीज एलिमेंट्स फ्रॉम 90s एंड ऑल दीज लिटिल थिंग्स दैट ओनली वरुण कैन पुट, मतलब सो वो सेम आर्क में मेरा क्वेश्चन था कि हाउ डू यू ट्रस्ट योर ओन स्टोरी with the same premise but with a different perspective, या with a different lens. How do या you trust it? मतलब how do you तो थोड़ा सा ना अपने आप पे जुआ खेलना पड़ता है, जुआ? ठीक है, बिकॉज वो ना द वर्ल्ड विल टेल यू दैट रादर देन यू हैव अ स्ट्रेट अप आंसर फॉर दैट, बिकॉज तुम्हारा काम तो स्टोरी बोलना है ना, तो तुम कैसे बोलने वाले हो, क्या करने वाले हो, क्या एलिमेंट्स यूज करने वाले हो, आप अपने क्षमता और अपनी इंटेलिजेंस और अपनी मतलब टैलेंट के हिसाब से वो कर रहे हो काम, but the world will be able to tell you that much better that maybe if it's an average shot or an average feature film they will only tell you, if it's a good shot good feature they will only tell you, मतलब so I think वो perseverance चलता रहेगा, मतलब so that हाँ मतलब उसका कोई इलाज नहीं है, बट ना एक यूनिकनेस आपको खुद को समझ में आनी चाहिए हाँ कि जैसे मैं कामयाब अगर बना रहा था ना, तो मुझे पता था कि ये एक हिंदी सिनेमा के कैरेक्टर एक्टर की कहानी अभी तक किसी ने नहीं बोली है, मतलब uniqueness. बड़ा अच्छा जूनियर आर्टिस्ट है ना, जूनियर आर्टिस्ट ओम शांति ओम, अरे ओम शांति ओम तो फुल लाउड कॉमेडी अलग अलग लेवल पे था, मैं बहुत एम्पैथी की तरफ जा रहा हूँ, मैं बहुत इस तरह मतलब सो वो था मतलब बट अब लोगों को वो फाइनल न्यूएंसेस नहीं पता होते, आपको पता होते हैं, मतलब सो थोड़ा सा अपने आप पे जुआ वो लेना पड़ेगा कि मतलब कि अभी मैंने कॉलेज में लिया था एक लेक्चर कुछ, वहां पे उन्होंने डॉक्यूज बनाई थी, और वही ग्रुप्स में कुछ लोगों ने इतनी अच्छी बनाई थी, और कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्री मतलब एक जर्नलिस्टिक रिपोर्ट समझ के उस एक टॉपिक के बारे में हर उसका पहलू बता दिया था, तो मैंने बोला मुझे हर पहलू जानना ही नहीं है उसका, मुझे एक ही पहलू पे कुछ एक कहानी बता दो ना, मुझे एक प्रोटैगनिस्ट चुन के कुछ बता दो ना, मतलब एंड द डॉक्यूमेंट्री दैट वन द बेस्ट प्राइज वो सच में ऐसा था, क्योंकि आई न्यू दिस बंच ऑफ गर्ल्स हु हैड मेड दैट they came from a space where there was so much empathy even if the craft was not the best, मतलब but that their storytelling had so much empathy from and they came from a certain place, so क्राफ्ट तो आपका धीरे धीरे, अभी मैं कामयाब को देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरी लगती है कि मतलब यार ये क्या सोच रहे हैं, मैं अहमदाबाद देख रहा था अभी एक दिन एक स्कूल सॉरी यूनिवर्सिटी के बच्चों को दिखा रहा था, तब मैं एंड आई वाज फीलिंग लाइक कि ये क्या है, यहाँ पे लाइट भी ठीक से नहीं है, उसका फेस भी लिट नहीं है, ये कैसे मैंने शूट किया है, मतलब एंड देन आई वाज फीलिंग अभी मैं करप्ट हो गया ना, अब मैं कि मैं डॉक्यूमेंट्री में भी सोच रहा हूँ कि उसका ना ऐसा प्रॉपर लाइट होना चाहिए, तब वो ऐसा जाना चाहिए, मतलब एंड आई वाज लाइक फीलिंग यार ये डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्यों हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम है, बट ये बात के प्रॉब्लम से पहले आप कहानी अगर अच्छी बोलने जाओगे तो वो अच्छे लोग पहले वो देख पाएंगे, रादर देन टेलिंग यू कि अरे ये तो पहले ही हो गया है यार, ये क्यों रहा है, तो वो यूनिकनेस आपको भी देखनी होगी, आप इसीलिए वो अपने आप में जुआ है कि हाँ यार, लेकिन तुमने क्या कोई काइट रनर इंडियन बच्चे की कोई डॉक्यूमेंट्री कभी देखी है, नहीं देखी है ना, वो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मेरे को जो ये समझ में आया वो ये समझ में आया कि अ सब प्लॉट ऑफ अ फिल्म कैन बी द प्लॉट ऑफ योर फिल्म इफ यू कैन बी एबल टू टेल इट इन द राइट पर्सपेक्टिव, ऐसा एब्सोल्युटली हो सकता है। और जो फ्रस्ट्रेशन की मैं बात कर रही थी वो इसकी बात कर रही थी कि जब 1000 लोग बोल रहे हैं कि ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज इसमें हो चुका है, इसमें हो चुका है, इसमें हो चुका है, एंड ऑल ऑफ देम आर ट्राइंग टू टेल द सब प्लॉट ऑफ अ फिल्म बट नॉट द प्लॉट, हाउ डू यू ट्रस्ट योरसेल्फ? No, so then no, there is a very easy answer that you have to not ask 1000 log. You have to ask 5 people who mean to you the most. करेक्ट। वो 5 लोग ना एक्चुअली में अगर वो 5 लोग भी यही चीज बोलेंगे तो मे बी दे आर राइट, ठीक है, और वो 5 लोग में से अगर आपको 3 या 4 लोग ये बोलेंगे कि हाँ यार मैं तेरी जिंदगी को पहचानता हूँ पहचानती हूँ, और तू जो ये बोलने की कोशिश कर रही है उसमें एक्चुअली एक बात है जो मैंने पहले कहीं नहीं देखी, या देखी है तो ऐसे देखी है लेकिन ऐसे नहीं देखी, और ना वो लॉग लाइन जो मैं बता रहा था लॉग लाइन पे स्ट्रेस करने को, वो लॉग लाइन ना हमेशा 4 लोगों पे टेस्ट करो, मेरे ना मामा चाचा टाइप लोग भी ना, मतलब उन लोग को फिल्मों विल्मों का सबको बहुत शौक होता है, वो सब यही बोलते हैं, तो उनको मैं ये बोलता हूँ कि ये कहानी है, तो उनके रिएक्शन से मुझे पता चलता है कि इनके लिए वर्क की कि नहीं की, मतलब तो जैसे कामयाब में ऐसा नहीं था कि सबके लिए वर्क की थी, लेकिन वो बोलते थे कि हाँ वो क्या करता था, वो ना वो पीछे हमेशा स्मगलर होता था, मतलब और उसका दांत हमेशा वो गोल्ड का होता था और उसको मार डालते थे, मतलब तो ऐसा, तो मुझे सी दैट बेसिकली इंस्टिगेटेड हिम टू टॉक मोर अबाउट दिस सब्जेक्ट इवन इफ ही डिडंट अंडरस्टैंड द लॉग लाइन ऑफ माय फिल्म, इट्स फाइन, मतलब बट दैट गॉट हिम एक्साइटेड रादर देन हिम सेइंग दैट क्या
अच्छा लवर की कहानी है ना, ठीक है। अच्छा तू आजकल कहाँ रहती है या रहता है? तो आपको पता है टॉपिक ही चेंज हो गया, तो क्या ही अब मतलब बोले आगे। So I think that's that, Hardik. Yeah, Thank you so much for patiently answering all the questions. sure, no problem. Thank you so much for making this film, Yeah. on dignity of labor, which is such a missing thing in Yeah. our industry. Okay, the three learning point, three key Yes, learnings. yes. One was dignity of labor, as I mentioned. Yeah. Number two is empathy and research. Okay, if you Ah. really feel for somebody, something, some situation, some family, some character, some protagonist, do a lot of research about them. Okay, and empathy and research combined together will bring you to something which you never thought it will. And number three, probably the most important point is the earnestness for travel and photography. ठीक है, तो वो ट्रैवल एंड फोटोग्राफी ऐसी चीज है ना कि वो आपको नया वर्ल्ड, नए लोग, नया कल्चर, नया हर चीज के लिए आपको क्यूरियस करती रहेगी। वो मैं पहले कर चुका हूँ, जो पंकज त्रिपाठी ने आप बोला है, और वो बहुत अच्छा बोला है कि हिंदुस्तान ऐसा देश है ना कि आप उसमें 350 रुपए की टिकट कटा के एक एंड से दूसरे एंड जनरल क्लास में जा सकते हैं 3 दिन का सफर लेते हुए, और भिन्न भिन्न प्रांत, भिन्न भिन्न लोगों से आप मिलते जाएंगे और पता नहीं कहाँ से क्या मिल जाएगा आपको। आई नो इट्स इजियर सेड फॉर मेन इन आवर कंट्री, मे बी women don't have this luxury often, but maybe take a companion along, and maybe, but the idea is to go and do these journeys.